मैं एक्चुअली बहुत शहर में रही हूँ जब से मैं पैदा हुई हूँ, तो जब से मैंने पंजाबी फिल्में करनी शुरू करी हैं, आई थिंक मेरी कोई किस्मत में कुछ पिंडों में लिखा होगा कि इसने इतनी अपनी ज़िंदगी पिंडों में गुजारी, जो मैंने वैसे नहीं गुजारी पर ऐसे गुजार ली ड्यूरिंग शूट्स। कि एज एन आर्टिस्ट आई फील कि अगर आपको कहीं भी किसी भी मीडियम पे किसी भी लैंग्वेज में कुछ अच्छा किरदार करने को मिल रहा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स OTT एक नवी चीज़ है कि ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਡਨਲੀ OTT ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਐਕਟਰਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। Hello and welcome to News 18 Shosha. I'm Bhavna Arya and today we are in conversation with Sargun Mehta and Gurnaam Bhullar who will be coming with the new movie Soorya Da Pind Aa Gaya. Hello and welcome you guys. Hello. How are you doing? बहुत बढ़िया जी, thank you. And the trailer is already out and people are already very excited about the movie, and you guys have already collaborated on a different movie altogether. So how was the experience of working again on a movie again? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। जो हमारी पहली मूवी भी थी, हमारी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया एंड पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अस टू कम टुगेदर अगेन ऑन स्क्रीन एंड हियर वी आर, सोर्या दा पिंड आ गया। 2-3 साल पहले हमने ये फिल्म शूट करी है, उसके बाद कोविड आ गया एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस हम लोग फिल्म नहीं रिलीज़ कर पाए, बट तब से जब से हमने ये फिल्म शूट करी हम सबको बोला हमारी एक फिल्म आ रही है यार, बड़ी अच्छी फिल्म है, हमारी एक फिल्म आ रही है यार, बड़ी अच्छी फिल्म है। हम लोगों को रुका रुका के उनको कहानी बता रहे हैं। अब फाइनली 8 जुलाई को ये फिल्म आ रही है। आप क्या बोलेंगे अपनी मूवी के बारे में और एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी शूट करने? बहुत ਘੈਂਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਨ ਲਵਿੰਗ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਹੱਸੋਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗੁਣ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕੁਈਨ ਆਫ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਫਿਲਮ। So हमने ट्रेलर देखा and we really liked it. The comedy, the dialogues, everything is so magnanimous and it's like captivating. And how was the experience of shooting among all these things? When you are shooting in a village, there is a different setup altogether. So how was the experience? आई थिंक हम लोग काफ़ी फिल्में, मोस्टली हम सारी फिल्में पिंडों में ही करते हैं ना, बिकॉज दैट इज़ मोर रिलेटेबल टू द कल्चर दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग। एंड मतलब हम पूरा पंजाब अगर आपने देखना है तो आप हमारी फिल्मों के थ्रू भी देख सकते हैं, एक तरीके से आप कह लीजिए। मैं एक्चुअली बहुत शहर में रही हूँ जब से मैं पैदा हुई हूँ, तो जब से मैंने पंजाबी फिल्में करनी शुरू करी हैं, आई थिंक मेरी कोई किस्मत में कुछ पिंडों में लिखा होगा कि इसने इतनी अपनी ज़िंदगी पिंडों में गुजारी, जो मैंने वैसे नहीं गुजारी पर ऐसे गुजार ली ड्यूरिंग शूट्स। It was shot during the pandemic only. Correct. How was it different from shooting currently that you have already Actually, done? it was shot before the pandemic, way before the pandemic. जब ये पैंडेमिक आया तब हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, तो तब से हमारी ये फिल्म डिले पे डिले कर रही है। एंड इट्स जस्ट दैट जब आप इतनी पहले फिल्म शूट करके रखते हैं तो आपको बार बार रिव्यू करनी पड़ती है कि उस टाइम से अब में बहुत फ़र्क आ जाता है ना। सो यू हैव टू अपडेट, upgrade and make sure that everything is in sync. But we are very, very excited. So as we see, there is a lot of fun in the trailer. You guys might have also had a lot of fun during shoot as well. So any fun BTS from this movie shoot? The one is ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। मैं गंगानगर ਸੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਥੋੜਾ ਸੀ ਗੰਗਾਨਗਰ। ਗੰगानगर। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੂਟ? 25 ਦਿਨ ਦਾ, 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। हाँ करेक्ट, अभयपुर। ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? So that is one. And इतना टाइम हो गया हमें शूट करे हुए कि कुछ चीज़ें हमें भूलने भी लगी हैं। एक्चुअली टेक्निकल डिटेल्स भूल जाती हैं, डायलॉग हमें याद रहते हैं। कुछ फिल्मों के डायलॉग ऐसे होते हैं जो आपको बड़े साल भी याद रहते हैं ना, तो ये वैसी है दैट इसके सीन्स हम लोगों को ऐसे बिठा बिठा के सुनाते हैं, यार हमारा सीन सुनो यार बड़ा अच्छा है, अरे यार हमारा सीन सुनो बहुत अच्छा है, ये फिल्म आएगी तो देखना। सो अब जब वो लोग वो सीन देखेंगे दिल बी लाइक फाइनली अभी हमें बोलना बंद करेंगे और हम देख सकते हैं। So ma'am, you have worked in TV shows as well. We have already loved you in all your roles on TV shows, and now you're coming on in a movie, and you've already worked in movies. How is it different for you
to work on films or in shows? It's very different. When we are working in shows, we have to do that same character role over and over again for years together. फिल्मों में of course आपको वो चांस मिलता है कि आप हर फिल्म के साथ एक नया कैरेक्टर, एक नई स्टोरी एक्सप्लोर करते हैं. एंड आई थिंक दैट्स द बेसिक डिफरेंस. बाकी एज एन आर्टिस्ट आई फील कि अगर आपको कहीं भी किसी भी मीडियम पे किसी भी लैंग्वेज में कुछ अच्छा किरदार करने को मिल रहा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए. गुरनाम जी, आप बताइए कि आपके डायलॉग्स बहुत ही मतलब एकदम रिसर्च्ड लग रहे हैं और एक मतलब स्टोरी भी ऐसी है दैट इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, बिकॉज हमने ट्रेलर में देखा दैट यू लव हर एंड देन शी इज अबाउट टू गेट मैरिड. इतने पॉइंट्स हैं कि हम ये नहीं बता पा रहे कि ये कौन सी शेप है. एग्जैक्टली बिकॉज आप उनसे प्यार करते हैं फिर वो दूसरे पिंड में चली जाती हैं, तो इट्स लाइक बट यू आर वर्किंग एज एन इन्फ्लुएंसर इन द फिल्म. यू आर टेलिंग द विलेज लेडीज ये वी विल गो टू वैष्णो देवी, समवन इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस अस. अब जब इसने ये बात ठान ही ली है कि ये मेरी पिंड की किसी लड़की के साथ शादी करेगा, आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरे पिंड का माहौल खराब करेगा, तो मुझे किसी को पटा ना ले. तो जितनी दूर सबको लेकर जा सकूं मैं उतनी दूर सबको लेकर जाने की कोशिश करी हूँ. बाकी वो सीन जब आप देखेंगे यू विल एक्चुअली रियली रियली एंजॉय इट. So ma'am, you have worked in TV and movies as well. So do you think it is difficult for some of the actors to venture into Bollywood after working in TV or otherwise as well? सबके लिए डिफ़िकल्ट है टू वेंचर इनटू अ बिगर स्पेस. ऐसा नहीं है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है या टेलीविज़न के लिए डिफ़िकल्ट है या किसी और के लिए डिफ़िकल्ट है. आई थिंक ईजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है. वी ऑल गेट ऑफर्स, इनके पास 10 होंगी, मेरे पास 10 होंगी, बट दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू वॉट वी वॉन्ट टू डू, है ना. तो वो सब चलता रहता है. पार्ट ऑफ आवर जॉब. इट्स लाइक अ प्रमोशन. Okay. So do you think the actors, it is specifically being said कि TV actors or generally actors have a specific time frame that they show up on the screen. There is a limited time frame that they work on the screen. So do you believe in that or do you think it is like an actor is always an actor? क्या है वो लिमिटेड टाइम फ्रेम, मुझे बताया जाए. स्पेशली फॉर द वुमेन एक्ट्रेसेस. आज भी रेखा जी काम कर रही हैं, आज भी विद्या बालन भी कर रही है. रानी मुखर्जी को मैं तब से देखती आ रही हूँ जब से वो स्कूल में थी, वो आज भी कर रही हैं. सुष्मिता सेन को मैंने तब देखा था जब मैं पता नहीं 2nd क्लास में थी, वो अब भी आर्या जैसे हिट्स दे रही हैं. आई डोंट थिंक देयर इज अ टाइम फ्रेम फॉर एक्टर्स. आई फील कि दैट्स नॉट. एंड इनफैक्ट जब से OTT आया है वो टाइम फ्रेम अगर थोड़ा बहुत था भी वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है. बिकॉज एवरी एज यू हैव अ न्यू रोल टू एक्सप्लोर. Okay. What are your thoughts on that? हाँ जी, देखो टाइਮ फ्रेਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ. ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਸਿਰਫ ਹੀਰੋਇਨਸ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਸਿਰਫ ਹੀਰੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਆ ਹਨਾ. ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ OTT ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਡਨਲੀ OTT ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਐਕਟਰਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ, ਉਹ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਉਹ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਜ ਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ होना इट डजंट डिपेंड. जैसे आपने कहा कि OTT की वजह से बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़. मैम, व्हाट आर योर थॉट्स दैट डू यू थिंक द पीपल हु आर नॉट गेटिंग चांस ऑन बिग स्क्रीन आर गेटिंग चांस ऑन OTT screens? इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब इदां नहीं कह सकते कि जे इन्हां नूं चांस नहीं मिल रहा वो तां OTT ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. OTT मतलब OTT ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਹਨਾ. ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਨਾ. ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਸ 'ਚ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ OTT 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ. ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟਸ ਐਸੇ ਨੇ. ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ है और ਇਹ नहीं सारे इधर भी काम कर रहे हैं उधर भी काम कर रहे हैं. सो इतना कुछ नहीं. सो आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए मैम. ये मूवी तो हम ज़रूर थिएटर्स में देखेंगे, बट यही मूवी आप सबसे पहले थिएटर्स में देखिए. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हम आपको अगली प्रमोशन पे मिलेंगे. Thank you so much for taking our time to speak to us. Thank you ma'am. Thank you.